Good morning, all of you. From today onwards, we will be covering your GK portion. I know many of you must not be having your GK books, so here I have written the question part also and the answers also for making it easy for you all to note it down. So you should do one thing ki write it down neatly in your notebooks where you can find the answers afterwards very easily. Okay. So first of all, let me tell you in brief about good touch and the bad touch. What actually is a good touch? Good touch as a way for people to show their care for each another and help each other, that is hugging or holding hands. Like if I give you a simple example from your home, your parents or your siblings, your brother, your sister, your cousin, brother, sister, I don't even say ki cousins, but your own brother, sisters and your mother and father, when they touch you, when they try to help you, when they hold your hands or try to console you when you are not feeling well, that touch which gives you a comfort is called a good touch. जब आपको किसी के टच से एक सुकून महसूस होता है और यू कैन से कि हाँ इस पर्सन के टच से आई एम गेटिंग रिलीव्ड, मुझे आराम मिल रहा है, देन दैट टच इज़ अ गुड टच. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द बैड टच ऑन द अदर हैंड इज़ द काइंड यू डोंट लाइक. मतलब एक ऐसा टच जिसे आप पसंद नहीं करते और आप अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं एंड वॉन्ट इट टू स्टॉप, और आप चाहते हैं कि इसको उसी वक्त पे एंड कर दिया जाए या रोक दिया जाए राइट अवे. उसी पर्टिकुलर टाइम पे यू डोंट वांट दैट टच टू गेट कंटिन्यूड. एग्जाम्पल हिटिंग और किकिंग और टचिंग प्राइवेट पार्ट्स. अगर कोई आपको मार पीट रहा है या आपके बिना परमिशन के ही और शी इज़ ट्राइंग टू टच योर प्राइवेट पार्ट्स, देन इट इज़ टर्म्ड एज अ bad touch. Okay, this is simply I'm telling you about the good touch and the bad touch. Now this is your chapter number 1, recognize me. Here you have some sentences and in your books it is drawn, also the figures are also drawn, but here I can only write it and show it to you, yeah, explain it to you. First is the huge eyes of this animal helps it to jump safely through the forest in darkness. It is found in Madagascar. तो ये जो एनिमल है ये इसकी आइज़ काफ़ी बड़ी होती हैं और ये क्या करता है, सेफली जंप करता रहता है इन द फॉरेस्ट, स्पेशली इन द नाइट टाइम. डार्कनेस मतलब अंधेरे में. और ये कहाँ पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन द मेडागास्कर. तो इसका आंसर है लॉरिस, LORIS. ओके. सेकेंड, दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट लिविंग मैमल. मतलब ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट लिविंग मैमल है. दैट मीन्स इट इज़ स्टिल अलाइव. इट कैन सर्वाइव इन मोर दैन 6000 मीटर अप इन द हिमालयाज़. ये जो एनिमल है आपका, ये हाईएस्ट टॉप ऑफ द हिमालयाज़ पे सर्वाइव कर सकता है इन सो मच हार्श एंड कोल्ड कंडीशन. ठीक है, सबको पता है कि हिमालयाज़ हमारे बहुत कोल्ड होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में होता है, बट दिस हाईएस्ट लिविंग मैमल वो वहाँ पे ईज़िली सर्वाइव कर सकता है. एंड योर आंसर इज़ याक. मेनी ऑफ यू मस्ट हैव सीन द याक in the hilly areas if you had gone there in your vacations. Now the third one, this animal gets its name from its habit of springing about 3 meters straight up in the air. ये जो आपका एनिमल है ये जंप करता रहता है कंटिन्यूस इन द स्प्रिंगिंग अबाउट 3 meters up in the air. मतलब ये एयर में ही जंप करता रहता है फॉर अबाउट 3 meters. The name of this animal is springbok, SPRINGBOK. Now next, this animal of the Death Valley in California saves water by eating its own droppings. ये जो एनिमल है इट इज़ फाउंड इन द कैलिफोर्निया डेथ वैली. और ये क्या करता है, ये पानी सेव करता है. कैसे? बाय ईटिंग इट्स ओन ड्रॉपिंग. ये जो खुद से फीसेस ड्रॉप करता है, द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी जो आपके एनस से रिमूव होता है, ये उन्हीं ड्रॉपिंग्स को दोबारा खा लेता है टू सेव द वाटर. एंड द नेम ऑफ दैट एनिमल इज़ kangaroo rat.
Okay, now the last one. This fish can produce an electric shock of 500 volts, enough to knock down an adult human. ये जो फिश है ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करती है ऑफ 500 volts. This much electric shock is very much enough to knock down an adult human. एक जो ग्रोन अप अडल्ट ह्यूमन होता है उसे भी इसके शॉक से वो गिर सकता है या उसे भी झटका लग सकता है. नाउ द नेम ऑफ दिस फिश इज इलेक्ट्रिक रे. आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल. आप इसे कॉपी में नोट डाउन करेंगे वेरी नीटली लाइक आई हैव रिटन इट. And tomorrow we will start with the inside the human body. This is your chapter number 2 और ये तो अभी आपने मोस्टली पढ़ा हुआ है अभी हमारे चैप्टर 2 साइंस में, तो आप इजीली इसको आंसर कर पाएंगे. हैव ए नाइस डे.